اور کرتے ہیں بڑی بڑی وجہ تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دوں گا حافظ سامع حافظ سمجھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه صدق الله العظيم. ماشاء اللہ یہ تھے حافظ محمد اسامہ جو کہ تلاوت کلام پاک سے ہمارے مدد فرما رہے تھے. ہم میں اس سیمینار کو مزید آگے بڑھانے کے لیے کوشچن کے لیے دعوت دوں گا وائس چیئرمین ملتان راج کونسل مسٹر محمد شریف صاحب کو. آپ کو بھرپور تعلیم میں تشریف لائیں گے مسٹر محمد شریف صاحب. Thank you very much. Welcome to all on behalf of Muttan Branch Office, especially the members and the students of Parsiane, members of Muttan Technical Association, and the office bearers of the Muttan Technical. I am also thankful for the guest speaker of today's event to spare their time and put forth efforts to bring us on the salient features of the budget 2023 and 24. The final budget of the year 2023-24 was presented on the 9th of June 2023. So, enlightened with different areas of the that are income tax, state tax, impact of budget on the businesses, and the impact of budget on the overall economy. Muttan Branch Council has arranged this three seminar in collaboration with the Muttan Branch Council with the Muttan Tax Bar Association. I am thankful to the Malik Ali and Jata Saab for support, and we hope this in the future as well. I am seeing the many faces who are not aware of the assembly, so I am sharing a little brief introduction of the assembly. The Institute of Coastal Management Complex was established in 1951 and the chartered under the Coastal Management Complex Act 1966 of the Parliament of Pakistan.
and the State Bank of Pakistan. Now I am requesting today's guest speakers to please come on the stage. Now Mohammed Yusuf Siddiqui, CEO of the Yusuf Siddiqui and Co. Please come on the stage. Malik Tola, Atif Hussain Association, please come on the stage. Kevin Mutamran Kosal, Mohammed Sejara, please come on the stage. To spare their time, Ravi and Co. and the former president of Multan Technology Association, please come on the stage. Yusuf Siddiqui, PhD scholar and a fellow member of ICMAP. He is the chief executive of Yusuf Siddiqui and Co. Currently, he is also serving as the secretary of 2023-24. Please welcome him. My dear honorable guest of today's event and dear participant, Assalamu alaikum. As you know, that Government of Pakistan has presented its budget on 9th of June 2023 for the upcoming financial year in tax year 2024. Conventionally, budget contains different aspects of the financial issues of the coming year. As per Article 83, every financial government is responsible to present the annual budget statement before the National Assembly for the upcoming fiscal year. So in the same way, the current government has presented the same budget, the same ABS annual budget statement as per Article 83 that contain different aspects of the financial areas. My other guests will also discuss their respective area. So today I have to discuss the definitely you people have certain information about through media that government has made certain changes in the income tax as well as sales tax, custom duty as well. In the current budget, government has also approved certain laws. This was the budget in such a manner that as far as the financial matters were presented among the members of the National Assembly, government also introduced certain new laws with the proposed finance bill. So we are going to discuss the income tax amendment in the upcoming year. So far as the income tax changes are concerned, government has made two types of changes. First change relates to the increase in tax rate and the other change relates to decrease in the tax rate. So मैंने अपनी स्लाइड्स में तो इस तरह का सीक्वेंसिंग बनाया कि पहले मैं सारी इंक्रीज बताऊं फिर सारी डिक्रीज बताऊं. तो जिस सीक्वेंस में चीजें डिफरेंट एरियाज में मिलती है उसको साथ में प्रेजेंट करते हैं. तो सबसे पहले जो इनकम टैक्स में जो चेंज आया इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में उसमें सुपर टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया जिनकी हाई इनकम अर्निंग है. जैसे अगर किसी भी टैक्स लॉज की बेसिक्स को अगर देखें तो जब भी कोई गवर्नमेंट और किसी कंट्री की गवर्नमेंट लॉ बनाती है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है टैक्स लॉ बनाया जाता है. सो उन्हीं प्रिंसिपल्स को बेस करते हुए हमारी जो गवर्नमेंट टैक्स बनाया इसका जो अमेंडमेंट की उसमें ये है कि जो हाई अर्निंग पीपल है उन पर टैक्स रेट ज्यादा लगा है जिसके लिए सुपर टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया अंडर सेक्शन 4C. सो रैशनलाइजेशन ऑफ सुपर टैक्स अंडर सेक्शन 4C to apply on all persons across the board on income above ₹150 million. यानी इस बजट में सुपर टैक्स लगाया गया उन लोगों के लिए जिनकी इनकम 150 मिलियन से ज्यादा है. और उसमें फिर 3 न्यू स्लैब्स इंट्रोड्यूस किए गए सुपर टैक्स में जिसमें यह है कि इंसर्शन ऑफ एडिशनल 3 न्यू इनकम स्लैब्स अगर 350 मिलियन से 400 मिलियन तक होगी 400 मिलियन से 500
इशू करती है तो रिटर्न में शेयर होल्डर से पैसे नहीं लिए जाते, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट रिजर्व में से ये बोनस शेयर इशू किए जाते हैं। सो इस आपको बोनस शेयर पर भी टैक्स लगाया गया 10% के हिसाब से। तो बोनस शेयर आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ इनकम, यानी जो जिस पर्सन को बोनस मिल रहा होगा किसी कंपनी की तरफ से तो उस बोनस को डीम्ड इनकम कंसीडर किया गया, यानी ये समझा गया कि उसको बोनस मिला है उसकी इनकम है, उस पर 10% का टैक्स चार्ज किया गया। The only tax on the bonus share has also been which will be considered as final. तो इसको फाइनल टैक्स regime में एफटीआर के रिगार्डिंग के 10% का टैक्स किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। अब मसलन टैक्स लगाने के लिए बोनस शेयर है कंपनी फ्री में शेयर देंगे, मसला ये कि इस टैक्स को कलेक्ट कैसे किया जाएगा, ये इसके इशू से उसको साथ हम अगली स्लाइड में जाकर देखते हैं। तो सिर्फ 10% का बोनस शेयर है उसका फाइनल टैक्स के थ्रू उसको टैक्स किया गया। अब जो बोनस शेयर होता है, the company issue जो कंपनी बोनस शेयर इशू कर रही है, कंपनी इशू द बोनस शेयर is required to deposit the tax within 15 days after the closure of books regarding whether the tax has been collected or not. चाहे कंपनी ने अपने शेयर होल्डर से टैक्स लिया है या टैक्स नहीं लिया, लेकिन 15 डेज के अंदर अंदर वो गवर्नमेंट के ट्रेजरी में ये टैक्स जमा कराएंगे, कितना परसेंट का 10% का। तो इसे बोनस शेयर होल्डर मस्ट, जो शेयर होल्डर होगा जो बोनस शेयर रिसीव कर रहा होगा, तो बोनस शेयर the person who is receiving bonus shares means the shareholder must pay a tax equal to 10% of the value of the share, including any withheld bonus shares. उससे जो bonus share withheld किए होंगे उसका including 10% वो क्या करेगा, एफटीआर के रिगार्डिंग टैक्स देगा। For listed companies, the value is based on the pay and price of the first day of the book closure, यानी उसकी वैल्यू कैसे निर्धारित की जाएगी, जो डे एंड की प्राइस होगी जिस दिन बुक रजिस्टर्ड क्लोज शेयरहोल्डर का शेयर रजिस्टर्ड, तो उस दिन की जो डे एंड की प्राइस होगी उसको बेस कराया जाएगा और उस पर भी 10% टैक्स इम्पोज किया जाएगा। While for other companies listed in each जो एफडीआर इस मेथड प्रिस्क्राइब करेगा उसके साथ में उसको क्या करेंगे, 10% के हिसाब से टैक्स करेंगे। If a shareholder fails to pay the tax or collect their bonus share, अगर एक शेयरहोल्डर अपना टैक्स पे किए बगैर बोनस रिसीव कर लेगा, if a shareholder fails to pay the tax or collect their bonus shares within 15 days of the issuance, the company has the right to sell the bonus shares, यानी अगर एक बंदा अपना बोनस शेयर कलेक्ट नहीं करता तो कंपनी के पास राइट होगा कि 15 दिन के अंदर उसका बोनस क्या करते, सेल आउट कर। तो ये बोनस शेयर पर इस दफा 10% का जो फाइनल टैक्स रिजीम का टैक्स था वो इस दफा ऐड किया गया। सर नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट है कि एक टैक्स क्रेडिट भी यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस। अगर कोई टैक्स पेयर नया अपना हाउस रेजिडेंशियल हाउस कंस्ट्रक्ट कर रहा है आने वाले साल के दरमियान में, तो अगर जब उस पर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो उसकी कंस्ट्रक्शन के हिसाब से उसको टैक्स में क्या दी जाएगी, क्रेडिट दिया जाएगा। अब ये इस तरह के कि एनकरेज किए जा रहे लोगों के लोग क्या करें, अपने घरों की कंस्ट्रक्शन की तरफ जाएं, और आप लोग जानते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन है उसके साथ हमारी मेजर इंडस्ट्री बिलोंग कर रही होती है। तो जो पर्सन अपना हाउस रेजिडेंशियल हाउस की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करेगा तो उसको टैक्स में क्रेडिट दिया जाएगा। अब क्रेडिट कितने हैं, अमाउंटिंग टू रुपीज 1 मिलियन 10 लाख या 10% ऑफ द अमाउंट टैक्स असेस, यानी उस पर्सन का जो टैक्स बनता होगा, जो बंदा ये क्रेडिट क्लेम कर रहा है उसके टैक्स का 10% या 1 मिलियन विच आर इज लोअर, जो लोअर होगा उसको इस दफा आने वाले साल में टैक्स क्रेडिट इंट्रोड्यूस किया गया और वो उसको दिया जाएगा। तो दो बातें सिंपल सी हैं, हम उस पर्सन का टैक्स देखेंगे कि उसके नॉर्मल टैक्स रिजीम के हिसाब से उसका टैक्स भर कितना रहा है, उसका 10% या 1 मिलियन विच आर इज लोअर, ये उसको क्या मिलेगा, टैक्स क्रेडिट मिलेगा। Reduction in tax liability of builders by 10% or rupees 5 million which are lower is introduced. वो तो पर्सन था जिसने अपना रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन की है और जो बिल्डर होगा उसके लिए भी 10% दी है और 5 million which are lower। अगर एक बंदा बिल्डर है, पिछली बात में क्या था, रेजिडेंशियल हाउस पर उसको क्रेडिट दिया जा रहा। जो नेक्स्ट डिस्कशन है उसमें जो अगर कोई बिल्डर है उसने अपना बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंप्लीट की है तो उस बिल्डर का टैक्स का 10% या 5 मिलियन विच आर लोअर इसको क्या दिया जाएगा, टैक्स में क्रेडिट दिया जाएगा। यहाँ पर एक एडिशनल टैक्स इम्पोज किया गया, एडिशनल टैक्स टू बी लेविड ऑन एनी इनकम प्रॉफिट और गेन अराइजिंग ड्यू टू इकोनॉमिक फैक्टर टू बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट ने कोई नोटिफिकेशन इशू किया, उसकी नोटिफिकेशन की वजह से यानी इकोनॉमिक फैक्टर में चेंजेस की वजह से अगर एक पर्सन की इनकम बढ़ गई for preceding 5 years from tax year 2023 and onwards, such additional tax will also be applicable for entities covered under the 4th, 5th and 7th schedule of the ordinance। यानी यहाँ पर फिर डीम इनकम का टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया कि अगर एक पर्सन ने गवर्नमेंट के मर्जर की वजह से उसको एडिशनल प्रॉफिट हो गया तो उसको भी इनकम कंसीडर करके टैक्स लगाया जाएगा। कमिश्नर
पाकिस्तान में रेमिटेंस भेज रहा है, तो उसके लिए भी यहाँ पर उसको डिस्कशन की गई, जो प्रिविलेज दी गई कि उससे नहीं पूछा जाएगा उसने ये पैसे कहाँ से कमाए, किस सोर्स से कमाए। अगर वो यूएस डॉलर पाकिस्तान में लेकर आया होगा और उससे ये नहीं पूछा जाएगा कि उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या, उसने पैसे कहाँ से लेकर आया, सो दैट कि मुल्क में जो डॉलर की डेफिशिएंसी वो भी हो सके। नो एक्सप्लेनेशन विल बी sought under section triple one for inward foreign exchange remittance up to US dollar 1 lakh or rupees equivalent as compared to current limit of rupees 5 million। अभी 5 मिलियन रुपीस की जो लिमिट चल रही है, अब आने वाले सेशन में प्रपोज किया गया कि $1 लाख की उसको क्या दी जाए, इजाजत दी जाए कि वो अगर फॉरेन रेमिटेंस से पाकिस्तान में लेके आना चाहता है तो वो ले आएगा और उससे उसका सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछा जाएगा अंडर सेक्शन 111। और उसके बाद फिर ऑटोमेटिक इश्यूज ऑफ एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट, ठीक है, उस पर्सन को फिर जो एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट है वो ऑटो इशू कर दिया जाएगा पोर्टल के सिस्टम के थ्रू IRS introduce where the Commissioner Inland Revenue does not process the exemption application for payments to non-resident within 30 days of filing of application। अगर एप्लीकेशन की फाइल करने के 30 डेज के अंदर उसको exemption सर्टिफिकेट इशू नहीं होता तो फिर कोटा उसको ऑटोमेटिक क्या करेगा, exemption सर्टिफिकेट इशू कर देगा पर्सन को। और जहां इसको $1 लाख लाने की इजाजत दी है, बैंक को कई सारे अदर प्रिविलेजेस भी दिए हैं, जो मेरे आने वाले मेंबर्स हैं वो साथ इसमें हाईलाइट कर देंगे कि उसको पासपोर्ट भी एडिशनल दिया, उसको मतलब एक एम्बेसडर का प्रोटोकॉल देने की उसको फैसिलिटीज है, तो आने वाले केस इंशाल्लाह उसको प्रेजेंट कर देंगे। नेक्स्ट सेल टैक्स रिटर्न फाइलिंग रिक्वायरमेंट withdrawn for availing final tax regime for exporters of software। अगर कोई पर्सन सॉफ्टवेयर बनाकर एक्सपोर्ट कर रहा होगा तो उस पर जो सेल टैक्स रिटर्न फाइल करने की जो रिक्वायरमेंट है वो विथड्रॉ कर दी गई है। इसके लिए जो बंदा सॉफ्टवेयर बनाकर एक्सपोर्ट कर रहा होगा या आईटी की सर्विस दे रहा होगा या आईटी लेबल सर्विस सर्टिफाइड बाय द पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड। अगर एक बंदा सॉफ्टवेयर बनाकर एक्सपोर्ट कर रहा है या आईटी लेबल सर्विस दे रहा है और उसका जो सॉफ्टवेयर हाउस है वो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से रजिस्टर्ड है, तो उस बंदे के लिए सेल टैक्स रिटर्न फाइल करने की जो रिक्वायरमेंट थी वो विथड्रॉ कर दी गई है। IT service और IT enabled services are included under the definition of SMEs। जो small and medium enterprises की definition है उसमें IT enabled person को भी क्या किया गया, SME का हिस्सा बना दिया गया और SME को इस दफा additional privileges भी इंट्रोड्यूस की गई जो पहले उसके पास नहीं थी। So business turnover threshold for small SME, पहले SME का जो business turnover का जो threshold था ending limit थी वो 250 million थी। अब इस 250 मिलियन को बढ़ाकर 800 मिलियन तक कर दिया गया है, जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है एसएमई के लिए कि पहले अगर किसी पर्सन की सेल 250 मिलियन से एक्सीड कर जाती थी तो वो एसएमई की डेफिनेशन से एक्सक्लूड हो जाता था और फिर वो नॉन एसएमई के टैक्स देगा होता था। अब इस दफा उसकी जो लिमिट है 250 मिलियन की उसको एक्सीड करके 800 मिलियन तक किया जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि अगर इसको एसएमई या नए आने वाले जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं वो इसको अटेंड करें। So there is a simplified tax scheme provided in the 14th schedule that provides relief and simplifies tax compliance for small and medium enterprises। अब current status क्या, currently this scheme is only applicable to the manufacturer। अब अगर पिछले टैक्स लॉ में SME की डेफिनेशन पढ़े तो उसमें सिर्फ मैन्युफैक्चरर को SME का दर्जा दिया गया, लेकिन आने वाले इसमें जो IT रिलेटेड पर्सन है, सर्विस प्रोवाइडर है, IT रिलेटेड एक्सपोर्ट वाले सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर्स, तो उनको भी SME का हिस्सा बना दिया गया और उनको भी ये प्रिविलेज दे दी गई जो बाकी SMEs थे, जो लास्ट टैक्स में सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरर के लिए। The 14th schedule provide reduced tax rate on taxable income and with an option to, अच्छा अब SME के पास दो ऑप्शन होती है, चाहे तो वो फाइनल टैक्स रिजीम में अपने आप को क्या करे, अपने टैक्स रिटर्न फाइल करे या अपने आप को क्या करे, नॉर्मल टैक्स रिजीम में जाकर टैक्स करे। और वो ये वाली ऑप्शन उसमें भी है कि 14th schedule के मुताबिक उसके पास दो ऑप्शन है कि वो चाहे तो FTR में अपने आप को टैक्स करे चाहे तो NTR पे करे। अगर वो फाइनल टैक्स रिजीम में अपने आप को टैक्स करेगा तो उसकी जो टैक्स की परसेंटेज है वो उसकी टर्नओवर में सेल पर अप्लाई की जाएगी, अदरवाइज वो नॉर्मल टैक्स रिजीम पर जाकर वो टैक्स अप्लाई होगा। अब जो एक दफा जो उसने ऑप्शन अवेल करनी है वो किस दिन अवेल करेगा, 30 जून को उसका साल खत्म हो रहा है और वो 30 सितंबर को जाकर अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है, तो जिस दिन वो अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है उस दिन वो ये ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन अवेल कर सकता है जिस दिन उसकी टैक्स रिटर्न फाइल हो रही होगी। और जब एक दफा उसने कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर ली, फॉर एग्जांपल उसने ही सेलेक्टेड टू टैक्स एज फाइनल टैक्स रिजीम, तो फिर अगले 3 साल तक जो उसकी जो
अपने आप को टैक्स करेगा तो टैक्सेबल इनकम के हिसाब से उसका ब्रेक इवन है, और अगर वो एफटीआर के हिसाब से करेगा तो ये जो परसेंटेज से एवरेज लाइक वो सारी की सारी टर्नओवर यानी सेव करता है। जी, अगर वो अपने आप को फाइनल टैक्स रेजिम में टैक्स करेगा तो फर्स्ट लाइन में उसकी सेल 100 मिलियन रुपीस तक होगी तो 0.25% ऑफ द टर्नओवर, और अगर उसकी सेल 100 से 250 के दरमियान होगी तो 0.5%, और फिर अगले डिस्कशन के साथ है ये स्लाइड आपके पास अवेलेबल भी होंगे आपको, और ये स्लाइड दे भी दी गई है। Financial year में International Center of Tax Excellence will be established by FBR, which intends to develop national tax policy, research in tax administration in the यानी इस दफा आने वाले बजट में जो हमारे इंटरनेशनल टैक्स पॉलिसी मेकर्स हैं उनको FBR के साथ कोऑर्डिनेशन की जा रही है ताकि हमारा जो टैक्सेशन सिस्टम है FBR का वो पहले से निकल से इंटीग्रेट कर सके, जिसमें एडवांस टैक्स है, एडवांस टैक्स एट 0.6% restored to be collected on the total amount of cash। अगर आप बैंक से 50,000 से ज्यादा अमाउंट कैश विड्रॉ करते हैं उस पर 0.6% के हिसाब से दोबारा टैक्स चार्ज कर दिया गया तो गुज़श्ता खत्म कर दिया गया। अब इसके लिए ये उस पर्सन पर चार्ज किया जाएगा जो फाइनल नहीं होगा, जो नॉन फाइनल होगा, जिसका नाम एक्टिव टैक्स पेड इसमें नहीं होगा। अगर 50,000 से ज्यादा कैश विड्रॉ कराएगा तो उस पर 0.6% के हिसाब से विड्रॉल टैक्स चार्ज किया जाएगा। जी, एडवांस टैक्स के बाद में फिर एडजस्ट होगी। जी, अब उसमें अंडर सेक्शन 1.3 में पहले मिनिमम टैक्स 1.25% चार्ज किया जा रहा था, अब ये लिस्टेड कंपनी के लिए 1.2% 1.25 से यूज करके इसको 1% तक क्या कर दिया गया, प्रपोज कर दिया गया कि जो कंपनी लिस्टेड है पहले वो अपनी सेल का टर्नओवर का अंडर सेक्शन 1.3 1.25% टैक्स देनी, अब वो 1% इसको प्रपोज किया गया। क्लैरिफाइंग दैट एक्सेस अमाउंट ऑफ टैक्स पेड शैल बी कैरी फॉरवर्ड। अगर एक कंपनी का टैक्स नहीं बनता था लेकिन उसने 1% पे करती है, अब जो उसने ज्यादा टैक्स पे करती है तो वो क्या होगा, अगले साल का कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और फिर अगले साल क्या होगा, जैसे बनेगा। रेट ऑफ टैक्स टू बी कलेक्टेड अंडर सेक्शन 148 फॉर कमर्शियल इंपोर्टर। अच्छा, इसमें अब कुछ इनकम टैक्स के एडिशनल है कि कमर्शियल इंपोर्टर पर टैक्स 5.5% से एडिशनल कर दिया गया, और नॉन रेजिडेंट पर्सन के लिए सेल ऑफ गुड्स पर भी जो टैक्स है 4% से 5% तक इसको इंक्रीज किया गया। जी जैसे अच्छा, इसके भी टैक्स ऑन सर्विसेज भी है कि सेक्शन 152 और सब सेक्शन 2 क्लॉज के मुताबिक अगर आप नॉन रेजिडेंट पर्सन को पेमेंट करेंगे तो उस पर जो टैक्स रेट है वो सर्विसेज पर 8% से 9% तक कर दिया गया। जी जी, ये भी विथहोल्डिंग टैक्स की डिस्कशन है कि अगर आप पेमेंट करेंगे रेजिडेंट पर्सन को फॉर सेल ऑफ गुड्स सेल करने पर तो उसका जो टैक्स रेट है वो 4% टू 5% तक इंक्रीज होता है। और उसमें भी दो डिस्कशंस हैं कि इंक्रीज फ्रॉम 4% टू 5% इन केस ऑफ कंपनी, और बाकी अदर पर्सन के लिए अदर देन कंपनी इंडिविजुअल है के लिए 4.5% से 5.1% कंपनी में क्या इंक्रीज है। जी सर, 3% से 4% तक एडिशनल टैक्स चार्ज किया गया। उसमें अंडर सेक्शन 153 पेमेंट टू रेजिडेंट ऑन दी रेंटिंग ऑफ स्पेसिफाइड सर्विसेज, इसमें भी 1% का टैक्स इंक्रीज किया गया है। जी नेक्स्ट स्लाइड पे ये स्लाइड्स बाद में फिर आप सब तक अवेलेबल भी होंगी, और चूंकि मेरा टाइम कंप्लीट हो गया इसलिए मैं इसको रिमाइंड करना चाहूंगा। तो एडवांस इनकम टैक्स है, रेजिडेंट एडवांस टैक्स रेट इंक्रीज फ्रॉम 1% टू 5%, और पेमेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट थ्रू अगर आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू नॉन रेजिडेंट पर्सन को पेमेंट करेंगे तो उस पर 1% से लेकर 5% तक जो टैक्स है वो बढ़ा दिया गया, और टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर दिया गया। अगर आपकी मैक्सिमम लायबिलिटी 2 महीने तक है 3 इयर्स तक उसको 50% क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। और इसमें एक जो यंग एंटरप्रेन्योर है उसको भी टैक्स पे एडवांटेज दिया गया है इसलिए कि उसकी 50% तक की जो टैक्स लायबिलिटी है वो भी रिड्यूस हो जाए। और बैंकिंग कंपनी के लिए जो टैक्स रेट है उसको 20% इसमें क्या किया गया, रिड्यूस किया गया। जो एक्सपोर्टर है, जो इंपोर्ट इनकम ऑफ एक्सपोर्ट मनी बोर्ड बैंक ऑफ पाकिस्तान फिल्म या ड्रामा या इस तरह की जो कंपनीज हैं जो अपनी फिल्म या ड्रामा के थ्रू अपनी अर्निंग करते हैं उसको भी इस तरह टैक्स में क्या दी गई है, एक्सेप्शन दी गई। जी अच्छा, इस स्लाइड में थोड़े से टैक्स इंसेंटिव की डिस्कशन है। जैसे कहा कि
टैक्स में क्या दी गई, इंसेंटिव एंड एग्जम्पशन दे दी गई है, एसोसिएट की डेफिनेशन ही थोड़ा सा चेंज आया है सर। नेक्स्ट स्लाइड पे जी, यहाँ तक थोड़ी इनकम टैक्स के डिस्कशन को कंक्लूड किया है। अब उसके बाद फिर इनडायरेक्ट टैक्स है वो नेक्स्ट प्रेजेंटर करेंगे, फिर आपका इसको पूरी क्वेश्चन आंसर का सेशन फिर आपका होगा इंशाल्लाह। We have another guest speaker who is even Dr. I.S. Kautal, who is an associate professor of Islamic University and has a PhD in political economy. I am requesting Dr. I.S. Kautal to please come on the stage. Now I am inviting the President of Multan Tax Bar Association, Malik Farim Hussain Mukhtar, Advocate High Court. He will brief us on the indirect tax changes in the budget 2023-24. Please welcome him. Sajjad Sahab sir, Chairman ICMA की लोकल डांस member हैं या स्टूडेंट्स हैं ICMA के या मेंबर हैं, तो उनको हम दोनों बॉडियों के कोलैबोरेशन से जो भी प्रोग्राम होंगे इंशाल्लाह फायदा होगा। साथ ही उनका ICMA के जो भी बॉडी है हम उनका भी लीडरशिप जो उन्होंने बहुत अच्छा ये प्रोग्राम उन्होंने किया। मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन और ICMA की मुल्तान का जो रेवेन्यू साइन हुआ था उसका पहला प्रोग्राम है और इंशाल्लाह ये बढ़ेगा, मतलब इसकी तादाद बढ़ेगी इंशाल्लाह और तुम्हारा नंबर मेरे जिम्मे सेल्स टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में कानून फाइनेंस एक्ट 2000 फाइनेंस बिल 2023-24 में जो प्रपोज अमेंडमेंट्स हैं उस सिलसिले में इससे पहले कि मेरी सभी सरदार साहब की तरफ से पर्चियाँ हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उसको जल्द ही है। तीन डेफिनेशंस हैं, एक है गुड्स की डेफिनेशन सेक्शन 2 सब सेक्शन 12, उसके बाद है किसी मूल्य की जो दूसरी डेफिनेशन है वो है सप्लाई की सेक्शन 2 सब सेक्शन 33। इन दोनों में एक जैसी ही तब्दीली आई है जिसमें प्रपोज है कि प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को गुड्स की डेफिनेशन से निकाल दिया जाएगा। थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई, प्रोडक्शन या उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके यानी वो पहले 2022 से पहले गुड्स की डेफिनेशन में नहीं था, सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं था। अलबत्ता वैल्यू ऑफ सप्लाई सेक्शन 2 सब सेक्शन 40 इसमें जो है ना मौजूद था। सब सेक्शन इसका 240 का H और I में रेफरेंस था, बाकी डेफिनेशन में कहीं नहीं था। अब हुआ ये कि हम सबको मालूम है कि 18वीं तरमीम में सर्विसेज को सुपर के
तस्वर होगा, समझा और पढ़ा जाएगा। जिस तरह अगर काला है और उसको ला कहता है कि ये सफ़ेद है तो सफ़ेद ही तस्वर होगा। इसी तरह कोर्स ने वो किया कि ये गुड्स ही तस्वर होगी, लेकिन कुछ निकाले सूबों से कुछ ऐसी बात आई जिस वजह से नेशनल टैक्स काउंसिल में जो सूबों की वो है उन्होंने शायद तकादा किया होगा, जिस वजह से उन्होंने इस दफा गुड्स की डेफिनेशन 22 में, हालांकि फाइनेंस एक्ट 2022 में डाला, अब आगे 23 में आके उसको निकाल दिया और निकाल के करना ये चाह रहे हैं, जो अप्रेंटली लग रहा है वो ये कि बिजली के बिलों पे जो सेल्स टैक्स है वो वफाक का डोमेन नहीं रहेगा, और इससे जो इम्पैक्ट पड़ना है वफाकी बजट पे वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक किस्म का होगा, क्योंकि ये सबसे पहला यानी या सबसे बड़ा एक रेवेन्यू जनरेशन का था जो बिजली और यानी होटल जो कंपनी है वो देनी और कलेक्ट कर रही थी। तो ये अच्छा, इसी को आगे बढ़ाते हुए वफाक ने जो फाइनेंस बिल दिया, इसी में जो इस्लामाबाद सेल्स एंड सर्विसेज टैक्स, उसका एक्चुअली नाम बता है क्या है, हाँ ऐसे, तो उसने हाँ जी इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी टैक्स ऑन सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2001, इसमें उन्होंने सेकंड शेड्यूल में क्लास 59 उसमें डाल दिया कि ये जो है ना वफाक का जो इलाका है यानी इस्लामाबाद, उसमें वो वफाक ही वसूल करेगा बिजली के उस पर। ये प्रपोजल है, अगर ये बिल पास हो गया तो यकीनन फिर वफाक का एरिया तो जो है ना सर्विसेज की मद में होगा, और इसी तरह प्रोविंसेस के बजट भी रह रहे हैं तो वो जब आएंगे तो वो यकीनन ये चीज को करेंगे कि सूबों के हवाले कर देते हैं। उसके बाद दूसरी जो ये तो एक तब्दीली थी तो मेरे दो सब सेक्शनों में डेफिनेशन थी। तीसरी जो है ना टियर 1 की जो टियर 1 रिटेलर्स जिनको पीओएस उसे हमने कहते हैं पीओएस में रजिस्ट्रेशन या जो है इनकी रेट जो किया जाता है एफबीआर के साथ, तो उसमें डेफिनेशन को तब्दील किया है दो चीज़ों के लिए खसूसन। एक फर्नीचर रिटेलर जिसके लिए मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड था 2000 स्क्वायर फीट या इससे ज़्यादा, उसके बाद जो दूसरे जो आम रिटेलर्स हैं जिसमें यानी शॉपकीपर हो गए, स्टोर्स हो गए, जो भी हर किस्म के, तो उनके लिए रिक्वायर्ड था कि 1000 स्क्वायर फीट या इससे ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा तो वो लाजमी होगा उसके लिए कि वो अपनी उसको बिजनेस को इंटीग्रेट कराए। लेकिन इस सेक्शन 43A में तब्दीली करने से ये जो एरिया के हिसाब से था वो आम रिटेलर के लिए भी और भी रजिस्टर्ड नहीं होगा पीओएस में। दूसरी कंडीशंस बहरहाल मौजूद है। very kind to us कि शॉपकीपर पर और की थोड़ी तबीयत भी खराब थी, इसके बावजूद हमेशा वापस सकते रवैया रखते हैं और आज की तबीयत के बावजूद हमें ज्वाइन किए हैं। प्लीज वेलकम इन on the stage. छोटी सी बात एक और ऐसा भी तशरीफ रखते हैं, ये इनके लिए बहुत बड़ा वैल्यूएबल है, हम सबके लिए वैल्यूएबल है, लेकिन जो है
یہ میرا خیال ہے کہ اس سے انڈسٹری پتہ نہیں یہاں اس فورم پہ یہ بات کرنی چاہیے، میرا خیال ہے تباہی کے دھانے لے جائے گی. وہ کیسے کہ جب الیکٹریسٹی اگر صبح کے پاس چلی جائے گی تو پہلے ہم جو گڈس پہ ایڈجسٹمنٹ دیتے تھے الیکٹریسٹی پہ جو سیلز ٹیکس ہم ادا کرتے تھے، اگر وہ اب چلا جائے گا سروسز کی مد میں صوبوں کے پاس یا پنجاب کے پاس، تو ہمیں جو سروسز ہیں وہ اتنی نہیں ہوتی کسی بھی بندے کی کہ اس میں وہ ایڈجسٹ ہو سکے یا اجہاز ہو سکے یا جسٹیفائی کر سکے. ایون بڑی بڑی کمپنیوں میں بھی اتنا ٹیکس لائبلٹی سروسز کی نہیں ہوتی کہ جس پہ وہ جلدی ایڈجسٹ ہو سکے. اب وہ چلی جانی ہے. اب دوسرے پہلو میں یہ پنجاب یعنی صوبے کی آمدنی بھی بن گئی. اب دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ جب ہم ایڈجسٹمنٹ دیتے تھے سیلز ٹیکس کی ریٹرن میں، تو اس گیپ کو پورا کرنے کے لیے ہمیں کیش میں جمع کرانا پڑے گا. جو سیلز ٹیکس ہمیں یعنی ہم دلی کی مد میں ایڈجسٹ کرنا چاہیے، ریٹ رکھا ہے انہوں نے 15% شاید تبدیل کر دیں. بے شک صوبوں کے پاس 15% کے حساب سے ہی ہو، لیکن 15% اضافی طور پہ صوبوں کے پاس چلا گیا. پھر وفاق میں آپ کے پاس وہ اوپر کا مطلب آپ کو کیسے جمع کرنا پڑے گا. بہرحال یہ پہلو تھا. میں سمجھتا تھا کہ یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری کے لیے بھی بہت زیادہ نقصان ہوئی ہے. مارک کے اس کے ساتھ تو پھر وہ سیلز ٹیکس لائبل ہوگا اس کا. ادروائز اگر بغیر برانڈ نیم کے ہوگا، چاہے کسی بھی پیکٹ میں ہو، کسی بھی یعنی وداؤٹ اینی ڈسکرپشن، تو وہ ایگزمپٹ ہوگا. یعنی ٹریڈ مارک اگر لگا ہوگا چاہے کسی بھی شکل میں ہوگا تو یہ ان کے جو ہے وہ ایگزمپٹ نہیں ہوگا. اسی طرح کچھ میڈیسنس کی یعنی بلڈ بینک، ان کو انہوں نے ایگزمپشن دی. اس میں یہ کہا کہ بلڈ بینک CPDA1 with blood transfusion set packed in aluminium foil with set. اچھا، اب کنفیوژن یہ تھی کہ جو ایلومینیم پیک میں پیک ہو کے امپورٹ ہوتا تھا وہ اس کو ایگزمپشن ہوتی تھی، لیکن اسی کے ساتھ اگر ان پیک شکل میں ہے یعنی ایلومینیم فائل میں پیک نہیں ہے تو اس کے لیے ایگزمپشن نہیں دے رہا تھا ڈپارٹمنٹ. اب وہ ایک کنفیوژن تھی، جبکہ لیجسلیچر کی انٹینشن یہ تھی کہ ہر قسم کی مطلب اس پہ کور ہو جائے گی بلڈ بیگ جو ہے. اب انہوں نے اس کو کنفیوژن کو ختم کرنے کے لیے ایکسپلینیشن اس میں ڈال دی کہ اس میں اگر بغیر پیک کے ایلومینیم فائل پیک میں ہوگا تو بھی وہ اس میں چلا جائے گا، ایگزمپشن میں ہوگا. کچھ مزید ایگزمپشنز انہوں نے بھی چھٹے شیڈول کے تحت. تو مطلب چیزیں نہیں لگا رہے ایکسپیرینس ہی ہے، باقی بھی ہمارے نہیں آتی. سگنل ہو گیا یعنی جانوروں کا کوٹ ہے، اس طرح کی چیزیں. کے ساتھ ایک شیڈول میں جو تبدیلیاں کی ہیں انہوں نے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ڈرگس ایکٹ 1976 کے تحت رجسٹرڈ تھیں، ان کی امپورٹ پہ یا ان کی مینوفیکچرنگ پہ 1% ٹیکس تھا، لیکن اس کے لیے یہ تھا کہ آپ وہ امپورٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کر سکتے تھے. لائک الیکٹریسٹی ہے یا دیگر پرچیز میں اگر آپ کرتے ہیں اور دے آتے ہیں جتنا بھی وہ ایڈجسٹمنٹ نہیں تھی، 1% انہوں نے دیا اور اس کو آگے اینڈ کنزیومر لیول تک وہ ایگزمپٹ کی. لیکن اب انہوں نے اس
मेरी जो थी चीज़ें तकरीबन जो मैंने कवर कर दी। थैंक यू। इसलिए मैं एग्जाम्पल द्वारा अपने नाम डिस्ट्रिक्ट एनालिटिक बैंक करता भी लेके आया था ताकि तो दोबारा ना भेजूँ। ये जो मैं तो उनको पुराने वक्तों का हूँ और सारे फिल्मों में से हूँ, सर्विस लाइन में मैंने सीधे पढ़ कर किया था। अब दूसरे उसके बजट और आज से भी 20-25 साल पहले कभी नहीं पढ़े, 20 साल पहले कभी नहीं पढ़े जो थे। मैं थोड़ा सा उनका कंपेरिजन करना चाहता हूँ। पहले बजट होता था साल में एक बार आता था, अब जो है रोजाना बजट आ रहा है। तो मैं कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ कि बजट को सुनने के लिए सीनियर बिजनेस जो इंडस्ट्री है वो नहीं आ रही। उसकी सिंपल वजह यह है कि पहले तो बात है साल में एक बार बजट दिया और पुराने वक्तों में आगे साइकिल था उसका काम होता था कि इसने भी बजट दिया लेकिन उसको अच्छी नजर से नहीं देखा था। लेकिन अब क्या करें, रोजाना की बेस पे जो है नए टैक्सेस लग रहे हैं। अब बजट को जो साल का जो पेश करना था वो फॉर्मेलिटीज ही रह गया, ना इसके ऊपर कोई डिपेंड करता है, ना ही इसके ऊपर हुकूमत डिपेंड करती है, ना ही परमानेंट पता था ये टैक्स हमारे नहीं है जो आज लगाए जा रहे हैं, जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो ये टैक्स हमारे वो है जो रोजाना अनपढ़ लोगों को जो होता था कि सिर्फ बजट में कैसे क्या चीजें आ रही। अब बजट में तो चीजें खास आती हैं, मुझे कोई बंदा को इकोनॉमिक्स कोई है तो मुझे बता दें कि ये जो डेली बेसिस पर रोजाना तो वो बिजली के रेट बढ़ गए, कभी तेल के रेट बढ़ गए, कभी किसी चीज ये कौन सी जगह पर जा सकता है। कभी साल के दौरान हम कितने का रेट बढ़ाएंगे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के गैस के रेट और इसके अलावा भी बेशुमार किस्म की टैक्सेशन है। लेकिन 3 आइटम वो है तो हर बंदा जानता है, बाकी बेशुमार आइटम वो है जो हम जानते हैं और वो जो रोजाना की बेस पे जो है कभी किसी के अदालत में किसी चीज में अदालत में कभी किसी चीज में अदालत। अब वो जो चीजें हैं वो तो हम फर्क कहीं नहीं होगी, ना तो बजट का एस्टिमेट करता ना कुछ। अब दूसरी बात यह है कि हमारे एक पुराना बजट बनाते वाले वो कहते हैं कि ये जो अगर इस चीज को हम एसेट कर दें दूसरा टैक्स लगा के तो इससे हमें इसमें करोड़ रुपया आ जाएगा। जब जो प्रैक्टिकली जो है जब फील्ड पर चीज आती है पता चलता है उसका तो कुछ भी वसूल नहीं हो सकती या ना होने वाला नहीं है, सारे इसके अंदाजे गलत हो जाते हैं। फिर वो दूसरे मीडियम हो जाएंगे उनके ऊपर डिपेंड करते हैं कि अपना रेवेन्यू पूरा करना होगा। इसी चीज यही के एक है एक टैक्स कल्चर। पाकिस्तान में टैक्स कल्चर अभी तक ज्यादा नहीं किया गया। कल रात हमारा किसी कार्यक्रम में पाकिस्तान का संज्ञान हो रहा था, हम भी वीडियो इंटरव्यू थे, हम तो 8:30 साल आए थे इस्लामाबाद में। तो उसमें जो है ना एक हमारे स्पीकर ने बताया कि स्वीडन एक ऐसा मुल्क है जहाँ जो है वो जो है 6% टैक्स है और उनको पूरे जो है ना बजट अपना वो सारा कुछ उसमें पूरा हो रहा था 6%। तो मेरे साथ जो वो 50 साल का बेटा और कुछ साथी बैठे थे, मैंने तो बताया मेरे को वो 6% जो है ना वो इस तरह का टैक्स है जो 6% है। तो यह है कि वहाँ इनकम टैक्स का रोजगार टैक्स को नहीं देता, बल्कि डिपार्टमेंट की तरफ से उनका जो उनको और जो डेटा होता है उसके मुताबिक उनका अपना जो है ना वो इनकम टैक्स का रोजगार कैलकुलेट करके फिर भिजवाते हैं। इतनी है कि जैसे हमारे पास जो बैंक स्टेटमेंट हमारे पास आए तो बैंक तो इसी कारण वहाँ का टैक्स है वो उसको पढ़ता ही नहीं, उसको यकीन होता है कि वो बिल्कुल सही होगी कोई इसमें गलत नहीं होगी। तो यहाँ जो है जहाँ हर बंदा टैक्स पे कर रहा हो तो वहाँ जो है इस तरह के लोग टैक्स रेट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ हमारे जो है कानून में सबसे बड़ा कानून है कि हमारे चंद लोग जो है टैक्स पे आते हैं, चंद लोग। मैं चंद लोग इसलिए कर रहा हूँ तो 22-23 करोड़ की आबादी में इनकम टैक्स को रोजगार में जमा कराने वाले
वाले अपने इनकम टैक्स पे नहीं पे रहे हैं, अगस्त में सत्रह रहता है, उनको कहा करेंगे आपको सितंबर की सैलरी नहीं मिलेगी अगस्त से आप घोष वाले जमा नहीं कराएंगे आपकी इनकम टैक्स। अब 70% है ये आपने इनकम टैक्स बात की है, तो ये 70% को टैक्स कट जाता है, सब लोगों को पता टैक्स कट जाता है। अब घोष वाले 10 लाख घोष वाला ऐड हुआ है, ये 30 लाख जो घोष वाला सुधार है, उसमें 10 लाख वो भी शामिल है जिसमें तो गवर्नमेंट को 1 रुपया भी रेवेन्यू नहीं है, बल्कि उल्टा क्या घोषणा बनाने को चाहिए मोबाइल पे टैक्स कर दिया या किसी और चीज पे या बैंक से टैक्स कर दिया, उसका उनका ऊपर रिफंड दिया था, यानी गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं कर दिया, 10 लाख टैक्स पे बढ़ गया। अब 2-3 लाख टैक्स पे वो है जो कि हर साल जो है यानी फाइनल बनने के लिए ताकि प्रॉपर्टी खरीदनी है उसके ऊपर हायर लेवल टैक्सेशन से बच जाए, कि गाड़ी खरीदनी है उससे बच जाए, वो जो है वो हायर लेवल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए वो जो है घोषणा देखकर का घोषणा देते हैं और उसके बाद जो है वो फाइनल बन जाते हैं और फाइनल बनने की बेस को वो टैक्स का रिलैक्सेशन दिया। लेकिन वो अब उसके बाद वो दोबारा नजर नहीं आता, उनकी जगह नए और आ जाते हैं 2-3 लाख हर साल, वो अपना बेनिफिट लेकर वो चले जाते हैं। गवर्नमेंट ने जो है वो 2-3 साल तक ये किया था कि जो घोषणा जो है अपने बजट को जो देगा वही फाइनल की कैटेगरी में आएगा और ये रिलैक्सेशन का जो फाइनल कराएगा। लेकिन बाद में ये कब्जा इतना स्ट्रॉन्ग है कि इन्होंने अपने आप को बड़े स्टैब्लिश करा दिया, खासतौर पर करने वाले टाइकॉन हैं जो प्रॉपर्टी में काम करते हैं, जैसे आपका ध्यान बने पड़े बहुत बड़ा। अभी 2-3 दिन से तो हम ये एक इश्तिहार में अखबार में आया किसी उनको कुछ स्कीम है, वो कह रहे थे कि अगर आपके मुल्क के हालात हमारे जुम्मे अगर हमें पूरे मुल्क का हम कर्जा उतार सकते हैं, ये 2-4 दिन से आप देख रहे हैं कमिटी आ रही कहते हैं हम गवर्नमेंट के कर्जे जितने जुम्मेदार हैं अब उनके ओरिजिनल स्ट्रॉन्ग है, इनको कानून बनाना पड़ा ज़्यादा कमेटी में होकर तो अपने लेने वाले गाड़ी लेने वाले उनको सिर्फ एक राज का टोटल पेंटिंग को लगा के उनको ज़्यादा जब वो देंगे अपना ये घोषणा जमा करा देंगे, वो फौरन ही ज़्यादा फाइनल कर देंगे और सिर्फ 1 लाख का जमा करा। अब इस तरह की चीज़ें जो होंगी तो वहाँ जो है वो टैक्स का जो है जितने नंबर ऑफ टैक्स कम होंगे उतना ही बर्डन ज़्यादा होता जाएगा उन लोगों को जो आगे करते हैं, वो कहते हैं अब उन्हीं से उसको करना जो टैक्स करना नहीं रखते और अच्छी आदमी इसके लिए जो है ऐसा नहीं करता कि नए टैक्स पे ढूंढे, हालांकि उसके पास अभी कितना भी डाटा उसके पास मौजूद है। मैं सिंपल मिसाल देता हूँ, ये जो हायर फीस वाले जो तालीमी इदारे हैं वो जो है उनके ऊपर एक टैक्स लगाया गया था, तो जो बच्चों की फीस का चालान बने हैं और चालान करके समय हो गया और आज पूरा देश का नारा लगाने के कितने तालीमी इदारे हैं और वहाँ जाकर कितने लोग झटका जाएगा पेरेंट्स का बेटा गवर्नमेंट का पास हुआ उसको हाथ कर दिया, उसी को सिर्फ हाथ होगा मेरे ख्याल में कुछ 4-5 करोड़ अब जो पंजाब कानून करने यहाँ पर कैसे लगा दूसरे कानून में अदालत कानून डाले जो मोटिवेशन में है और वैसे भी बड़े ऊंचे लेवल के डाले हैं कानून डाले, सिर्फ
نے جو اپنا بجٹ جو اپنا انالیسس تیار کیا ہے اسے تو غلال صاحب اور جو خان صاحب ہمارے سینئر ممبر ہیں چیمبر آف کامرس کے اور ہمارے پوسٹ بجٹ سیمینار ڈسکشن ہو چکی تھی، لیکن میں تھوڑا سا آپ کو اوور ویو دوں گا ود ان 5 to 10 منٹس. ہم نے 7300 ارب روپے دیٹ مینس 53% اماؤنٹ ہم نے لون اور انٹرسٹ پے کرنی ہے اور 47% ہم نے اپنا پاکستان کی ملک پاکستان کے لیے ایکسپینس کرنے ہیں. جو 47% ہے اس میں سے صرف 12% ہمارا آرمی کا حصہ ہے، جو پچھلے سال 15% تھا، اس مرتبہ اپنا آرمی نے اپنا بجٹ کم کیا ہے اور 12% کیا ہے. اور اس کے بعد سول کے جو بیوروکریسی ہے ان کی سیلری کے لیے 5% آف دا بجٹ ہے، پینشن کے لیے 5% آف دا بجٹ ہے، اور جو ہمارے سرکاری ادارے آفس میں ہیں اس کے لیے 10% آف دا بجٹ ہم نے اماؤنٹ رکھی ہے. تو اگر ہم اپنے وہ ادارے جو نقصان میں انہیں کو پرائیویٹائز کر لیں تو ہمارا 10% بجٹ تقریباً 1500 ارب روپے ہم بچا سکتے ہیں. اب دوسرا پارٹ آتے ہیں کہ ہم اس کو ان ٹرمز آف ڈالر ہم کنورٹ کرتے ہیں. جو پاکستانی لاس ہے پاکستانی بجٹ جو پاکستان نے ایسٹیمیٹ کیا ہے وہ تقریباً 5 ارب روپے ہے، 500 ارب روپے ہے. اس کو اگر ہم 290 روپے پر ڈیوائڈ کریں تو پاکستان نے اس سال ایکسٹرا 19 بلین ڈالر لوگوں سے ملکوں سے قرضہ لینا ہے. اس کے لیے جو بجٹ میں پروپوزل بتائی گئی ہے اس کے مطابق 2.4 بلین ڈالر ہم آئی ایم ایف سے دیں گے، 4.5 بلین ڈالر ہم پاکستان اور باہر کے کمرشل بینک سے دیں گے، اور 12 بلین ڈالر کے ہم لون ریسکیجول کروائیں گے. یہ گورنمنٹ نے یہ بجٹ دیا، گورنمنٹ نے یہ بجٹ بزنس فرینڈلی نہیں دے پائی. ان کو آخری 3-4 دنوں میں جو ہے اس پر ہماری انفارمیشن چینج کرنا پڑا ہے بجٹ، کیونکہ آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ کے مطابق ان کو بہت ساری چیزیں چینج کرنی پڑی ہیں. جو پروپوزلس پہلے تھی اس کے مطابق مقدار ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو میری نالج ہے آئی ایم ایف کی ڈیل نہیں ملنے والے تھے. تو اس کی ریزن آگے بتاتا ہوں. پہلے میں بریفلی اس بجٹ کی، لیکن یہ سب تو بہت ٹیکنیکل ہے، میں بہت جنرل گفتگو کرنے والا کروں گا. جو بجٹ کے اچھے پوائنٹس ہیں وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے پہلی مرتبہ آئی ٹی سیکٹر کو ایس ایم ای کا درجہ دیا ہے. تو ایس ایم ای کا اسٹیٹس دینے کی وجہ سے آئی ٹی سیکٹر کے لوگ لونز لے پائیں گے، سستے لون لے پائیں گے. مختلف قسم کے ایڈوانٹیجز ہیں جس میں انکم ٹیکس انہوں نے کہا کہ آپ کو 0.25% پے کرنا ہے. $24,000 اگر آپ کی انکم ہے پر ایئر تو اس کے اوپر آپ سیلز ٹیکس سے ایگزمپٹ ہیں. ٹرن اوور 1% ہے، اور اسی طرح ڈفرنٹ قسم کے لونز میں آپ کو کنسیشن ہے اگر آپ آئی ٹی سیکٹر میں ہیں. دوسرا گورنمنٹ نے فوکس کیا ہے اس بجٹ میں وینچر کیپٹل کو. وینچر کیپٹل ایک نیا ٹرم ہے جو پوری دنیا میں اور پاکستان پر پوری دنیا میں پہلے سے تھی. ٹیسلا کے جو مالک ہیں ایلن مسک، اس نے وینچر کیپٹل سے پہلی مرتبہ اپنی کمپنی 2000 میں بنائی جو ناکام ہوئی. دوسری وینچر کیپٹل سے 2005 میں بنائی وہ ناکام ہوئی، اور تیسری 2009 میں اس نے ٹیسلا بنائی جو کامیاب ہوئی. تو ٹیسلا کا وینچر کیپٹل پاکستان میں ایک نیا کنسیپٹ ہے، اس کے لیے گورنمنٹ نے $5 بلین رکھے ہیں. ایس ایم ای سیکٹر کو سپورٹ کیا گیا ہے. اس میں ان کا کوالیفکیشن جو ہے وہ ٹرن اوور 25 کروڑ روپے سے بڑھا کر 80 کروڑ کر دی گئی ہے. بینک لونز 6% کر دیں گے، اور اس میں سے بھی 20% جو بینک کا لون ہوگا اس کا اگر وہ پے نہ کر پائے تو گورنمنٹ اپنی سیکورٹی دے گی. اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایک نیو ایجنسی بنائیں گے جو کریڈٹ انشورنس اور ان کے لیے ایس ایم ای سیکٹر کے لیے سیپریٹ ہوگی. ایف ٹی ایس EFS ایکسپورٹ فائنینشیل اسکیم، یہ اس کو پہلے سے تھی 2021 میں دی گئی تھی، لیکن اب اس کو اگست تک جو کمپنی اس میں رجسٹر نہیں ہوگی وہ PNTL PTRE ریفنڈس ہر قسم سے آؤٹ ہو جائے گی. تو ایوری ون ہیز ٹو بی ممبر آف EFS کے پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں پروز اینڈ کونس ہیں. فورن ریمیٹنسز کے انہوں نے ایک ڈائمنڈ کارڈ کا اجراء کیا ہے جس میں
महंगाई के दौर में बेहतर है, इंक्रीज किया, लेकिन अगर आप देखें इन टर्म्स ऑफ डॉलर तो आज से 3 साल पहले जितनी सैलरीज थी वो आज उससे कम है। यूथ एंटरप्रेन्योर्स के लिए 10 बिलियन की अमाउंट रखी गई है लोन्स के लिए, उसमें क्राइटेरिया है कि 30 साल 30 ईयर्स आपकी अगर एज हो और आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको वो लोन अवेल कर सकते हैं। सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग के लिए लोन्स दिए गए हैं, बताया गया है, काफ़ी इंसेंटिव है, लेकिन वो मेरे ख्याल में फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि सोलर पैनल की फैक्ट्री लगाने के लिए कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, और उस कॉस्ट के ऊपर जो आपका चाइना में पाकिस्तान का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उसके तहत वो जो टेक्नोलॉजी चेंज करके हर साल चेंज कर लेते हैं, एडवांस कर लेते हैं, और जो पाकिस्तान आएगी तो पाकिस्तान वाली टेक्नोलॉजी पुरानी होगी, तो सोलर पैनल की इंडस्ट्री पाकिस्तान में कोई उसके चांस नहीं है। उसको उन्होंने इंसेंटिव लेके ट्राई किए, कोशिश की, लेकिन FTA के तहत आज भी पाकिस्तान चाइना को $3 अरब का एक्सपोर्ट करता है और $18 अरब इम्पोर्ट करता है, तो दैट इज अबाउट 18% ऑफ आवर इम्पोर्ट जो है वो चाइना से होती है। FTA की वजह से एवरी ईयर $15 अरब हम चाइना से डेफिसिट में हैं। उसके ऑपोजिट साइड पर USA और यूरोप जो है वो पाकिस्तान का 56% एक्सपोर्ट यूरोप और USA को जाता है, और उसके अगेंस्ट 9% हमारी इम्पोर्ट यूरोप से होती है। तो बहरहाल ये अल्लाह है। बेनजीर इनकम स्कोर जब ये गवर्नमेंट आई थी तो उस वक्त सालाना बजट में 250 अरब रुपए थे, जो इन्होंने बढ़ाते हुए 360 अरब किए, सिर्फ 400 के ऑफिस मंथ का बजट में $450 अरब, 4-4.5 अरब रुपए किया है। इसको ये कहते हैं कि हम टारगेट सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अगर 450 अरब रुपए को आप इंडस्ट्री में दें, और एक इंडस्ट्री अगर आप समझते हैं 50 करोड़ की बन जाए, छोटी इंडस्ट्री में कहता हूँ 1 अरब की बन जाए, तो 900 फैक्ट्रियाँ 50 करोड़ के हिसाब से आप बना सकते हैं, और 900 फैक्ट्री में आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना बेहतर है इंस्टेड ऑफ $450 रुपए सिर्फ तकसीम करना। इस बजट में इश्यूज क्या है? इस बजट में इश्यूज ये हैं कि इंसेंटिव नहीं दिए गए इंडस्ट्री को, क्योंकि IMF की डिमांड थी कि आप कुछ ना दें। टाइल्स इंपोर्ट करने पर रेगुलेटरी ड्यूटी कम कर दी गई है, तो जो पाकिस्तान में टाइल्स बनेगी वो इंपोर्ट में सस्ती हो जाएगी। इशुएंस ऑफ बोनस शेयर, उसके ऊपर 10% टैक्स लगा दिया गया है, सुपर टैक्स को इंक्रीज कर दिया गया है। ये है बातें बजट की। अब कुछ बातें मैं आपसे जनरल करना चाहता हूँ। जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से हम मुख्तलिफ लोगों को मिलते हैं, उसके मुताबिक आप लोगों के जो जैसे मैंने बताया कि 56% एक्सपोर्ट यूरोप और अमेरिका में है, उसमें बेसिक रीज़न हमारी यूरोप की GSP 10 के 10 है, जो हर 3 साल बाद रिन्यू होता है। इस साल दिसंबर में वो एक्सपायर हो रहा है, और एज पर माई इंफॉर्मेशन ये रिन्यू नहीं होता। नहीं होने का मतलब ये है कि हमने अपने लोगों से पूछा है, डिप्लोमेट से, कि ये क्यों नहीं होगा। तो ऐसे और अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली ये चीज़ हमें रियलाइज की पाकिस्तान में जो बजट है या इकॉनमी, उसका एक बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इकॉनमी को। इकॉनमी का इन्फ्लुएंस है पोलिटिकल सिचुएशन पर। तो जिस तरह पाकिस्तान में पोलिटिकल कंडीशन चेंज होती है, आपकी उस तरह जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है वो भी चेंज होती है, जिसकी वजह से डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस को आता है। फॉर्चुनेटली वी हैव डाटा है टोटल क्लियरली इन द पोलिटिकल इकॉनमी, वो हमें इकॉनमी के ऊपर जो ओवरऑल इम्पैक्ट आ रहा है बजट के बारे में, बजट की वजह से उसके बारे में देखते हैं। नहीं करता हूँ मेरे साथ के लोग भी मुझे करने से शुरू हो गए। मेरा भी इस बात के मैं क्या बोलूँ, मुझे लग रहा है मैंने जो कुछ बोला था वो सब मैं बोली, बहुत अच्छे अंदाज से बोली, और आई वाज जस्ट लिसनिंग टू ऑल ऑफ देम।
going over there, so please don't tell it to anybody that I have done PhD in Pakistan political science. I've done my PhD from the University of Malaya. When I went over there to do my PhD, I started first to do it on knowledge management. Since that was the area at that time to start about. But then my supervisor said that being a Pakistani, find out the area in which you actually think that in a Pakistan, a major state, which is the pulse of Pakistan. Then I searched for 6 months sitting in a library that which area can be found around, which can be considered as a hope for future development of Pakistan. As Nasab has said in his talk, that अगले 150-200 साल तक भी हम इस विषय से बाहर नहीं हो सकते. As Pakistan was saying that it's always going forwards, लेकिन बस शजर से उम्मीद रहेगा. So this but if we can put it on in a cup, in a one bowl, then certainly until and unless the country doesn't have a political stability, you cannot go, you cannot think about economic stability. We can talk about it days and days. So it is not a question, as we said, fortunately, unfortunately, this is a fact. It's nothing related to fortunately or unfortunately. This is a system. This is a mechanism which has to be like that. That if a country wants to go for economic stability, it has to start. As Sir was talking about IMF bailout, and he was talking, no, bus, and all this. I just want to talk briefly about what can be, which are the elements on which this government has made that budget, which is relying on that budget. And I would like to put some question in front of you esteemed intellectuals. That since you all are the listeners, can we go with those elements or no? So I'm going to lead today putting such questions in front of you. So if you look at the budget outlay of Pakistan, so this is about the last 5 years. As everybody told you that it is this time it is almost 500 times more, 500 trillion more, 14.4 trillion is the total outlay of the budget. Turn to the path of development by this government. Agriculture, IT and legal services, SMEs, as I was talking about, industrial and export sector. So I will give a brief review about all of them. Small. Please next. When we talk about agriculture, there is an increase in agriculture credit limit. Around 1,800 billion से लेके 22.50 billion. Convert एक और प्लान जो इस दफा का है, convert agriculture tubers on a solar system 50,000 को करना है. एक और जो इस दफा का बहुत अच्छा lucrative offer है, जिसके ऊपर बड़ा open किया है. That is 55 billion have been allocated for the provision of concessional loan for the agro industry. Now in the books, this all looks very good. I am talking about it. But the question about it is, last year we all have seen what has gone through Pakistan, the destruction which happened in our country, dramatic change. Floods, we have seen. Agriculture का क्या हुआ? क्या हुआ था? कहाँ लगा? जब ज़मीन ही नहीं थी तो agriculture आपने कहाँ से करी? So this time in a climatic change, climatic department has given only 4 billion to the climate. So what about the climatic change? पहले हम जून में always देखते हैं. This kind of climatic change we are not working on the
गुड लुक्रेटिव फिगर्स, बातें जो हमने बहुत अच्छी सुनी. Concessional rate of income tax 0.25% से applicable to boost IT exports. It is offered till 2026. Freelancers have been declared to transfer sales tax registration returns on annual reports up to $24,000. Software and hardware worth 1% of exports and will be able to import tax-free. Venture capital की बात अभी सर्कुलर की है. The current rate of sales tax जो कि अभी 50% था उसको कम करके 5% कर दिया IT ने. But again, the question we all have to think about, what about the job allocation of small city IT? Yes. We all know, India के बाद India का second country जहाँ पर freelancing करती है. But जिसको आप कहते हैं हमारे IT houses जो हैं, where are they located? In Karachi, Lahore, Islamabad. What about the IT graduates of the underdeveloped areas? Is the government doing any activity of developing those IT houses, software houses? If you talk about India, India ने चप्पे में IT houses बना दिए. अगर IT graduates बनाए तो IT graduates के लिए IT houses थे. हमारे पास इसमें I since this is my कुछ मेरे भी कुछ deep pulses हैं. Since I belong to Bahawalpur right now. So हमारे पास IT graduates सबसे बड़ा computer science department है. 2500 IT graduates निकल रहे हैं हर साल. कहाँ जाएंगे वो? कितने वो आना होते हैं? कितने IT houses हैं बहावलपुर में या मुल्तान में? Is the government has put any amounts in the budget for development or allocation of IT houses? Freelancers हैं. Freelancers को करें. हम कोई system, कोई mechanism provide नहीं करेंगे. आपको इजाज़त है कि आप पैरेलल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बना लें अपना, हम उसकी आपको दिस इज नॉट अबाउट पॉलिटिकल एफिलिएशंस. क्योंकि यहाँ पर अगर हम होते अगर देर में लिया मीडिया बस वो वही नंबर्स को ऑपोजिट में डील कर लेते हैं. ईवीएम का होगा, नून का होगा, वो उसी नंबर्स से निकल के अब बात करनी चाहिए, इश्यूज़ के ऊपर बात करनी चाहिए, उसके इश्यूज़ को खोलिए. नेक्स्ट प्लीज. SMEs का बजट IT को भी दे दिया. SMEs का there is a construction, agriculture, SMEs a concessional tax of 20% instead of 39% on the income till 2025. SMEs turnover threshold increased from 250 million to 800 million. अभी सर ने बताया था. SMEs turnover threshold हो गया. But again, the question is establishment of market and network for the SMEs. आज सुबह की मेरी एक जो हमारे सेंसिटिव डिपार्टमेंट है, जिनको नाम मिलते हैं हम सबको लगे है, उनके बहुत डीप सेंसिटिव डिपार्टमेंट के ऑफिसर से मेरी बात हो रही थी. तो वो कहते हैं कि मैंने उनको बताया कि मेरे यहाँ क्या है. So he said that you can quote it and you can sell it. इससे मैं doesn't say quote it. He said that as per my knowledge, he was a person for intelligence. He said that आपका फ्यूचर का SME खत्म होगा क्योंकि आपका लेबर पाकिस्तान जा, ठीक है, वहाँ पर उनको जीरो टैक्स रेट, जीरो उसके डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो पूरा स्ट्रक्चर बना कर देंगे. सो बिग बिजनेस को बचा नहीं, वो पहले चला गया श्रीलंका, बांग्लादेश और यूएई. SME हमारा बचत थी जिसके ऊपर हम लेकर कर रहे थे, वो अफगानिस्तान अगर मूव ऑन हो गया फिर आगे क्या सोचना है. फिर आप लोग भी बड़े लोग हैं जो सोच सकते हैं और मुझे बताएंगे कि इसके आपको क्या सोल्यूशन नजर आता है और इसके बाद से होता है. इंडस्ट्रियल एंड एक्सपोर्ट सेक्टर अगेन एक एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एक्सपोर्ट काउंसिल पाकिस्तान ने बना दी है. सेल्स टैक्स के ऊपर तो माशाल्लाह सब हमारे पास अगर एक्सपोर्ट्स करते हैं. लॉन्च ऑफ एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम है. कस्टम ड्यूटी जो है टैक्स कैप पे रिड्यूस कर दी है 20% से, जो टेक्सटाइल का कहते हैं ये. बट अगेन जो हमारी मेजर है, अभी सर बता रहे थे कि टेक्सटाइल का क्या बड़ा गर्व हुआ है. फैसलाबाद पूरा का पूरा कहाँ पहुँचा हुआ है, तो कैसे खाली हुए हुए हैं. एक आपका जो मेजर था उसको आपने कहाँ पर कर दिया, क्या इसमें दिए, क्या एक्टिविटी दिए. वी हैव टू आंसर दिस थिंग्स. नेक्स्ट प्लीज. सो ओवरसीज पाकिस्तान एक एट द एंड ऑफ द डे हम इनकी तरफ देखते हैं. अगेन कासिम का अब्बा की तरफ देखता है तो वो भी रेमिटेंसेस है और उसके ऊपर ही पास सारी एक्टिविटी है.
Remittances account for 90% of our exports. 2% final tax on purchase of immovable property by overseas Pakistan is abolished. And what we अभी जैसे कहा था सर ने कि there are multiple license दे दिया, non-prohibited coal license, that is passport दे दिया, preferential access to Pakistan embassies and consulates दे दी, ये सारा का सारा diamond card वगैरह दे दिया, ये सब. Again, the question which has to be asked, remittances and overseas Pakistan is still only real estate market. हमें यही समझ नहीं होता. फिर हम लोग कह रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान की इन्फ्लेशन का मेजर वजह रियल एस्टेट मार्केट और रियल एस्टेट से है. तो हम उनको प्रोडक्शन की तरफ, इंडस्ट्री की तरफ कब लेकर आएंगे और इसकी तरफ उनकी मूवमेंट वो अट्रैक्शन और फैसिलिटेशन और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उनको कब देंगे कि वो इसकी तरफ आगे बढ़ना कर सकते. So that is also that is about education. Okay. The federal government plays its due role in the promotion of education. और education के ऊपर हमारा budget allocation जो हुआ है वो तकरीबन 1.7% है of total budget allocation. जरा comparative analysis कर लीजिएगा और countries के साथ कि हम budget education के ऊपर हम जितना लगा रहे हैं हमारे जितना लगा रहे हैं. लेकिन श्रीलंका, बांग्लादेश वहाँ पर हमारा क्या activity. So the question which comes over here also, HEC को हमने दे दिया है, हमने उनको डेवलपमेंट बजट अच्छा खासा बढ़ा दिया उनका और रिसर्च बजट भी बढ़ा दिया. But the question arises कि आपको पता है ना पिछले PhD किसने हो गए हैं इस पाकिस्तान में. और था कि हम कहते थे एक को दो बैचलर मिलता है और एक को दो PhD मिलता है. This married PhDs not making our students move up in research which is applicable to the industry. और वो हमारे यहाँ जो गैप है इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट लाइजॉन जो है वो डेवलप नहीं. वो जो सारा टेस्ट है करोड़ों रुपए लेके आपके स्कॉलर्स बाहर जा रहे हैं, वो जो रिसर्च करके बाहर आ रहे हैं, जरा मुझे बता दें कौन सी इंडस्ट्री में आप लोग भी सारे इंडस्ट्रीज करते हैं कि हमने अपनी इंडस्ट्री में ये रिसर्चर था उसको ये रिसर्च हुई थी. इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हमारा रिसर्चेस करके रखते जा रहा है, कहीं पर वो इंजीनियरिंग की रिसर्च, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट रिसर्चेस करके रखे जा रहा है, कहीं पर वो सीड मैंने डेवलप होता नहीं देखा, कहीं पर वो डेवलपमेंट होगी क्योंकि एप्लीकेशन क्योंकि लाइसेंस डेवलपमेंट टर्शियरी एजुकेशन के ऊपर फोकस है. क्वालिटी ऑफ प्राइमरी एजुकेशन अगेन इज द इशू. So these are the issues we have to think about. Next please. And then women empowerment 51% है कि 52% है इस वक्त पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन का. Any girl can tell me? It is about 52% of total population. Right? 5 million रखे हैं जी आपके लिए women empowerment में. Projects like skill development, loans for business and training for running a business in Iran. And again, the questions which we have to answer is women-oriented industry establishment, new and navy, इसमें कुछ रखा गया, quota for women and female education and health issues को कितना 52 को हम एड्रेस ही नहीं करते हैं. फिर हम कह रहे हैं इस वक्त 10 करोड़ 100 million ऑलमोस्ट हो गया हमारा पॉवर्टी लाइन से. पिछले साल का 7 करोड़ का जो अपना 10 करोड़ हर मेरे alarming horrifying. Next please. Energy. हम कहते हैं कि हमने coal-fired power plants are being encouraged to use local coal, raw material batteries, solar panels. अभी सबने बताया कि solar panels का तो industry हमारे यहाँ की नहीं है, नहीं है. The government bulk storage policies for key oil products is being implemented to deal with shortage issue which was common in the past. मुझे अच्छा लगा जैसे हमने कहा कि आज हम कुछ इसके साथ से बात हुई और जो प्लान है कि सबको कंबाइन करके रखते हैं और इससे नेटवर्क मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क के लिए कोई एक्टिविटी पता नहीं होगी. नेक्स्ट आ जाते हैं कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर PSCD के ऊपर तो 2.6% ऑफ टोटल GDP हमारा जो है वो PSCD से 52% जैसे PSCD has been involved for attracting foreign direct investment
तो ये वही वाला सवाल है जिसमें आपको बताया हाउसिंग के ऊपर आपने 4% लगाया, डिस्ट्रक्शन आफ्टर लास्ट ईयर कम्स आर नॉट एड्रेस। सो वो जो तबाह हो चुके हैं वो कैसे इस 5-6 महीने में दोबारा अपनी पूरी इंडस्ट्री खड़ा कर लेंगे और दोबारा अगले साल में आपको इतना दे देंगे कि आप 9200 टैक्स की कलेक्ट कर लेंगे, आप 14.4 ट्रिलियन का रेवेन्यू भी जनरेट कर लेंगे और आप अपने आप पूरे कर लेंगे। बड़ी अच्छी बात है, तो आप कर सकते हैं, वाला करें वो सारा कुछ। वैसे छोटा सा एक और पॉजिटिव कॉमेंट दे दूँ, अभी सर बात कर रहे थे इंटरेस्ट रिटर्न की, तो 7.3 ट्रिलियन सर तो हम देख रहे हैं इंटरेस्ट रिटर्न देते हैं। अच्छा जी, और जो आपका मिलिट्री का बजट है सब 1.8 ट्रिलियन, तो 1.8 और 7.3 ट्रिलियन को जरा मिलाएं कितना हो जाता है? 9.1। अच्छा, अभी तो मुझे बहुत खुशी है कि 9.2 हम टैक्स ले लेंगे। क्या ले लेंगे टैक्स? नहीं, हम इसका 70% करेंगे, 60% करेंगे। जस्ट इमेजिन कि अब हमारी मिलिट्री बजट भी वहाँ से फाइनेंस हो, बोरोइंग पे फाइनेंस हो। जब आपका मिलिट्री बजट भी बोरोइंग पे फाइनेंस हो, सो फॉर मी इट इज अ गूज़बम्प्स, फॉर मी इट इज अ, तो यही था कि अगर ये भी नहीं है बाकी तो छोड़ देना, सिर्फ 2 बढ़ाया जा सकता है। अगर आपने 2 भी आपको उस पर जोड़ी है तो बाकी नहीं पाते, तो हम कैसे प्लीज इंस्पायर कर दीजिएगा। ये सारी बातें तो सब मजाक में बहुत अच्छे अंदाज से, मेरे से अच्छे अंदाज में की है। अभी कभी ये भी आपको पता ही अभी मैंने कहा सारी बढ़ती है। अब ये कुछ विनर्स हैं, लूजर्स हैं, नेक्स्ट इस बेल आउट के ऊपर सब बातें कर दी हैं। बेल आउट के ऊपर से तो मैं एक बात करना चाहूँगी, टेक्निकली रिलीजियसली तो फॉर्मेट ये है कि आपके 45 दिन रह गए इस लोगों के पास, और उसके बाद 3 महीने यानी कि 90 डेज रह गए। तो लेट मी बी अ डेविल्स एडवोकेट, लेट मी बी अ IMF पर्सन, ठीक है? मुझे बताएं मैं क्यों दूँ 45 दिन आप बैठे हो, 90 दिन हो बैठे, क्या गारंटी है कि मुझे रिटर्न मिलेगा? आपने जो सच्चाई है, ये बजट पेपर बजट, पेपर्स में बहुत खूबसूरत बैठे, पेपर्स में सब कुछ बहुत अच्छा, और बाकी जैसे बाकी साहब ने कहा IMF को खुश करने के लिए हमको शायद वो हमारा, लेकिन नजर भी नहीं आ रही ना कुछ। हम इसको सॉल्व देते हैं तो इससे और का क्या है, और आप कहते हैं कि वो हम निकालने की इन एनी कॉस्ट हमने ये हमारी करंट सिचुएशन है जो कि बहुत खतरनाक है। नहीं बोलूँ तो अच्छी है, 21% वो कह रहे हैं कि हम ले आएंगे इन्फ्लेशन को। आजकल क्या है जी 38%, ठीक है जी, और जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है वो 48%, ये खाने पीने की चीज़ों पे 48%, मतलब 38%, उसको आप कम करके लेकर आएंगे 25%। एक कॉमन सेंस है, एक कॉमन थोड़ा सा ट्रिक है, कॉमन सेंस अपने क्राउड है जो हमारे अनटॉकिंग बहुत बच्चे हैं, मैं आप लोगों के बारे में बात करूँ, बच्चों के बारे में। एक कॉन्ट्रैक्शनल गैप, कॉन्ट्रैक्शनल पॉलिसीज, एक्सपेंशनल पॉलिसीज। जब आपने इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो आपने कौन सी पॉलिसी लगानी है, कॉन्ट्रैक्शनल की एक्सपेंशनल? कॉन्ट्रैक्शनल। कॉन्ट्रैक्शनल पॉलिसी लगानी है तो आप ये वाला जो 14.5 है वो कैसे करेंगे, इतनी एक्सपेंशन कैसे करेंगे, तो आपको कॉन्ट्रैक्शन करनी है, ठीक है? तो अगर आपने उनको देना है कि इन्वेस्टमेंट करें, इंडस्ट्री लगे तो इसके तो बाय प्रोडक्ट है इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन होगी, फिर 36 से 21 में कैसे आ जाएगी? थिंग्स आर नॉट आंसर है, मतलब कोई बंदा समझ नहीं सकता है कैसे आप कुछ मैंने भी सोचा कि क्योंकि आई एम गोइंग टू टॉक टू अकाउंटेंट्स एंड आई एम गोइंग टू टॉक टू इंडस्ट्री पीपल हु आर रनिंग द इंडस्ट्रीज, तो मैं उन्हीं के कुछ फैलो पीपल के कुछ एक्सपर्ट ओपिनियंस ले रहा हूँ, तो आगे मैं अपना बताऊँ कि वो क्या सोचते हैं उस डेट के बारे में। नेक्स्ट प्लीज। तो ये व्यास साहब का भी है, कुछ डिफरेंट मैंने आर्टिकल्स पढ़े, मैंने देखो में कौन कौन क्या कुछ कह रहे हैं, CEO है इंदो के, उनसे जब पूछा गया कि बजट के बाद के आप जरा अपने ओपिनियन में, तो उन्होंने कहा मोर देन 3% ऑफ टैक्स पेयर्स कंट्रीब्यूट 90% और मोर टू डायरेक्ट टैक्सेशन। मेरी तरह वो
and relying only on the industrial. I think these are the golden words. Okay, आप बड़े अच्छे हैं तो हमें समझना चाहिए क्या कहते हैं क्या है. Next please. Abdul Alim साहब जो कि CEO है Overseas Investor Chamber of Commerce के Industry in Pakistan. He said that there is an absence of measures to incentivize investment in manufacturing and other job-creating sectors, while there are no special measures to attract large foreign investment in the country. He is the one who is the CEO of Overseas Investment Chamber of Commerce. Next please. Irfan Iqbal साहब जो कि President है Federation of Pakistan Chamber of Commerce के University में. The federal budget presents an unrealistic picture of the economy. And therefore, the budgetary targets set are unrealistic as well. Additionally, the business community will be looking for a hidden taxes in budget. The revenue target of 9,200 billion revenue not only is difficult, but it can have far-reaching negative. Mustafa Pasha साहब कहते हैं कि the budget is unlikely to improve chances of service level achievement. In June, IMF will likely ask for additional revenue measures of 500 कर पाए, अगर वो 800 मिलियन की डिमांड कर पाए तो फिर हम यहाँ चले गए. Expect a mini budget when a new program is being negotiated. तो एक फिर हमने आज की बात है कि कागजी का प्रोविजन है, दूसरा है कि मिनी बजट आने वाला है आपके पास 3 महीने बाद. चौथा तीसरी बात है कि वैसे ही डेवलपमेंट में तो पंजाब में भी और केटी में दोनों ने कह दिया कि फॉर्मर्स का है हमारा, तो हम दोनों ने पहले भी एक साथ बात कर रहे थे. नेक्स्ट प्लीज. तो कंक्लूजन आई विल से दैट क्वेश्चंस तो बहुत से हैं जो मैं सबसे उठा रही हूँ. जीडीपी डेफिसिट है 7.7 का, रेवेन्यू टारगेट है 9.2 ट्रिलियन का. पाकिस्तान डिजाइन जीडीपी ग्रोथ ऑफ 3.5% जो कि अब 0.9% है. Expecting inflation of 21% and targeting a fiscal deficit of 6.54 of the GDP. कैसे हो सकता है? छोटे से solution अगर हम practical देखें, tax net का है, investing in education and human development, and managing and mounting fiscal deficit or creating a learning business environment. ये कुछ pillars हैं जो थोड़े से पकड़ लें तो शायद वो जो फ्लड में घूम रहे हैं और इसके ऊपर बिल्डिंग बनाना शुरू करें, शायद रास्ता 150-200 साल किसी में तो फिर शायद रास्ता आई होप और आपने जो सजेशन पास की है हमारे पास जनरल की रिप्रेजेंटेशन भी हम उम्मीद करते हैं कि इनमें से बहुत सारी जो सजेशन है वो आगे फेडरल गवर्नमेंट तक पास होगी. बाकी जो लीगल इंस्टीट्यूट हमारे हाथ में है वो ये है कि हम एकेडमिक और इंडस्ट्री का जो रिलेशनशिप है उसका जो गैप है उसको कम कर सकें. और उसके लिए इस तरह के हम जो यूनिट ऑर्गेनाइज करते हैं उसका मकसद भी यही होता है कि हमारा जो इंडस्ट्री एकेडमिक रिलेशनशिप है वो लाइन ऑन है वो नया हो ताकि हमारी जो कदर उसके अंदर आई एम राइटिंग इसका सजाद सेलमन और कैप्टन में ऐसा कि एक मुकाबला तो बहुत थैंक्स. प्लीज वेलकम. बड़ा अच्छा एनालिसिस किया है. उसके बाद बड़े आलम से दरिया साहब प्रेसिडेंट इनकम टैक्स एसोसिएशन आपने सेक्टर्स के ऊपर जो है वो बड़ा कंप्लीट सर हासिल जो है वो किए. उसके बाद गुलाम वाली साहब का ये कानून प्रेसिडेंट हैं इनकम टैक्स सीनियर पोस्ट प्राइवेट कंपनी में
किया है ओवरऑल प्रोजेक्ट के ऊपर। मैं शुक्र गुजार हूँ खालिद मोहम्मद साहब साहब का, ये हमेशा हमारी जो है वो सरपरस्ती करते हैं, हमारे गाँव पे तशरीफ लाते हैं। आज इनका कोई थोड़ा सा हेल्थ इशू भी था, लेकिन उसके बावजूद जो है वो तशरीफ लाए हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका, ओवरऑल प्रोजेक्ट के ऊपर पेश किया है। I'm also thankful to Dr. Aisha Shaukat, वो स्पेशली इस सेशन के लिए भागलपुर से तशरीफ लाए हैं। उन्होंने भी ओवरऑल प्रोजेक्ट पे जो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में बेहतरीन कंट्रीब्यूट किया। तो मैं तमाम जो पैनलिस्ट हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज के ओवरऑल मूड बन रहा था, उस मूड के हिसाब से लग ये रहा था कि बजट के जो है वो कोई अच्छी खबर उसमें है नहीं, और मिजाज एक ऐसा बन रहा था पूरे पैनल का। आज जो बेहतरीन लोग हैं, अपने अपने एरिया के टॉप नॉच लोग हैं, और इन्होंने जो बात की है उसमें कोई एडिशन या उसको कोई कमेंट का शेर के पन्ने से शिकार निकाल कर लाने वाली बात मैं नहीं करूँगा। मैं थोड़ी सी वो बातें, थोड़ी सी ऐसी चीज़ें जहाँ से तो थोड़ी सी ठंडी हवा बजट से आ रही है, हमने बावजूद इसके कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो 9,200 रुपये तमाम दोस्तों ने बताया, NFC के बाद वो 6,800 रुपये रह जाता है। जो सिर्फ और सिर्फ डेट सर्विस है वो 7,300 रुपये, तो रेवेन्यू से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ अकेली डेट सर्विस है। उसके बावजूद 35% इंक्रीज दिया है, ये 50% देना चाहिए था, लेकिन फिर भी अच्छी बात है। 17 to 22 30% रेज दिया है, ये एक अच्छी बात है। एग्रीकल्चर सेक्टर बैकबोन है, ये हम सब कहते हैं, लेकिन उसके लिए जब एलोकेशन की बात आती है तो एलोकेशन क्लियर नहीं होती थी। तो एग्री लोन है, और उसके अलावा पूरा पैकेज आपने देख लिया होगा, 2,250 अरब रुपए का एग्री पैकेज है। IT सेक्टर को पैकेज दिया है, फ्रीलांसर, वर्चुअल असिस्टेंट, ई-कॉमर्स से रिलेटेड लोग, और वो लोग जो इस फील्ड से रिलेटेड हैं उनको अगेन एग्जम्पशन दिया। एक एनकरेजमेंट है, जो स्टूडेंट नौजवान हमारे बैठे हैं उनके लिए इंटेलिजेंट बात है, वो इसको भी जरूर कंसिडर करें। एक्सपर्ट्स फॉरेन पाकिस्तानी, वो पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर हैं उनके लिए पैकेज दिया है। आप समझे एक तरह की डॉलर एमनेस्टी स्कीम है। फॉरेन पाकिस्तान में जो डॉलर भेजते हैं, तो इसको मैं सादा अगर करके बताऊँ, आप सारे लोग एक्सपर्ट हैं इसी शोबे से, ये डॉलर एमनेस्टी है करंट बजट में। तो ये एक अच्छी बात है। पहली दफ़ा 9,200 अरब रुपए के रेवेन्यू कलेक्शन की बात की गई है। ये 12 महीने का सफर है, होता है नहीं वो एक और बात है, बट हमारी जो कलेक्शन एबिलिटी या रेवेन्यू जनरेशन एबिलिटी उसको स्ट्रेच करके 9,200 बिलियन पे लेके ये अच्छी बात है। पाकिस्तान में पेट्रोल और LPG दोनों का वो रशिया से आ चुके हैं। पाकिस्तान पहली दफ़ा अमेरिकन इन्फ्लुएंस और यूरोपियन इन्फ्लुएंस से निकल के अपने ट्रेड को सेंट्रल एशियन और रशियन साइड को ओपन कर रहा है, ये एक अच्छी बात है। इससे भी अच्छी बात ये है कि ये पेमेंट चाइनीज बॉन्ड में किया डॉलर की बजाय, तो डॉलर पर प्रेशर कम होगा। वो और बात है कि डॉलर से रिलेटेड इशूज बताए गए हैं कि ग्रे मार्केट खत्म नहीं कर रहा पाकिस्तान। एक चीज़ और, $2 बिलियन का जो शॉर्टफॉल है, जिसको सॉवरेन गारंटीज IMF कह रहा है कि वो नहीं मिली, वो एक्चुअली मिल चुकी हैं। ये और बात है कि IMF अगर लोन नहीं देना चाह रहा तो अब सूरत हाल है कि पाकिस्तान लेना नहीं चाह रहा, लेकिन IMF के लोन में कहानी $2 बिलियन की सॉवरेन गारंटीज की नहीं है। मुझे इफ्तिखार आने पर एक शेर याद आ रहा है, कहानी आप उलझी है या उलझाई गई है, ये उतना तब खुलेगा जब तमाशा खत्म होगा। IMF के रिलेटेड इशूज बाद में पता चलेंगे कि ये कोई सॉवरेन गारंटीज का इशू था या ये कोई और इशू था। ये थोड़ी सी बहुत देर से आप बड़ी मीनिंगफुल और बड़ी कॉन्सेंट्रेटेड गुफ्तगू एक्सपर्ट्स की सुन रहे थे। तो बहुत लंबी बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके बाद एक शील्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है, इन लोगों की को थैंक करने का एक टोकन एप्रिसिएशन है। आप तमाम लोगों के 3 CPTR के सर्टिफिकेट्स रेडी हैं, आपके सामने में रियल टाइम में साइन कर रहा था, तो आप अपना अपना सर्टिफिकेट लेके जाइएगा। ये एक लंबी चौड़ी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी, इसलिए वो सामने काउंटर पे हमने बता दिए, तो आप अपना अपना सर्टिफिकेट CPTR का लेके जाइएगा। और हमने आपके लिए थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट का भी इंतजाम किया हुआ है, तो ये बाकी अनाउंसमेंट शेयर साहब भी करेंगे। मैं आपका इस दफ़ा तमाम पार्टिसिपेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
जी सर, आ रही है आवाज, हम सुन सकते हैं आपको। सामने देखिएगा। Thank you. Thank you. इनको ज़रा एक मिनट वेट कर लीजिए। Thank you. Thank you. सामने देखिएगा सर। ओके हो गया। Thank you.